So last we discussed about all the basic till I-13. I hope everybody understood. There is no doubt. So let's go ahead and do the further. I-14, write it, dx by L1 root L2, I-15, dx by L into root Q, I-16, dx by Q1 into root Q2, where the L and Q are the usual notation, means where L represent linear expression of x, linear expression of x, Q represent quadratic expression of x. Understood? So you can easily understand this L1 means some linear into some other linear. If this form is coming, R linear into root quadratic is coming, R quadratic into some other root of quadratic is coming. Now listen me, first let me explain this. Whenever you see this kind of situation, कि dx by some linear into some other linear, but other linear is the inside the root. So simple, straightforward. L2 equal to t square, answer will come. Whatever inside the root linear is there, that put equal to t square. 100% answer will come. If you find ever कि dx by linear into root quadratic is coming, so for this the simple straightforward route is that कि whatever linear is there, that put equal to 1 by t, answer will come. By this linear into root quadratic, so this linear equal to 1 by t, you will put it, you will get the answer. If you get dx by quadratic into root quadratic, put x equal to 1 by t, x equal to 1 by t, answer will not come. By putting this substitution, you will not get answer. One more substitution. One more substitution. That you have to take decision after the putting this substitution. That way, generally, you will able to easily understand that what the next substitution. I don't have to tell you the things. So this cases is coming. This is the three common cases can be happen. Again, I am telling these are not formula, these are not method. It's just substitution. If this kind of situation is coming, directly you will put the substitution. You are not going to change anything. कुछ भी change करने की जरूरत नहीं है. आप सीधे ये substitution put कीजिए और उसके बाद से आंसर निकालिए. हाँ, अगर कुछ चेंजेस होता है तो फिर आपको वहां पे अपने अनुसार से डिसाइड करना पड़ेगा. बट ये जनरली जितने केसेस मैं बता रहा हूं वो 95% क्वेश्चन को कवर कर लेंगे. 5% क्वेश्चन तो हमेशा आपके पास रहेंगे जहां पे आपको अपना ब्रेन यूज करना है. मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर रियली डेंजरस क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे तो वो किसी भी फॉर्म से मैच नहीं करेंगे. बट ये सारे फॉर्म आपको थोड़ा हेल्प करेंगे. चलिए अब नाउ इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. ऑल ऑफ यू रोटेड, नोट किया? 3 क्वेश्चन मैं ही करा दे रहा हूं डायरेक्टली, टाइम क्योंकि ऑलरेडी टुडे इज लेट. dx बाई, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ, क्या हो गया ये पेन को मेरे, सम रूट ऑफ x प्लस 3, समथिंग लाइक दिस. तो अब यह साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्म कौन सा है, dx बाई L1 इंटू रूट L2. L1 इंटू रूट L2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो भी इनसाइड रूट है उसको आप t पुट कर दी, t स्क्वायर पुट कीजिए, t स्क्वायर पुट कीजिए, आंसर 100% आएगा. तो dx कितना हो जाएगा आपका 2t dt, और वापस यहां पे पुट कर दीजिए तो 2t dt डिवाइडेड बाई x माइनस 1. ध्यान दीजिए x प्लस 3 t स्क्वायर है तो x क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3, तो यहां t स्क्वायर माइनस 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4, और ये रूट ऑफ ये t हो जाएगा t बाय बाय हो गया. क्वेश्चन सॉल्व हो गया. 2 इंटू dt बाई टी स्क्वायर माइनस 4 मीन्स टी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर.
सो दिस इज द फॉर्म ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो 2 इंटू 1/2a मीन्स 1/2 इंटू 2 ln mod t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 प्लस c. जो भी सिंप्लीफिकेशन करना है कर सकते हैं. 1/2 ln mod t की वैल्यू पुट बैक कर दीजिए, रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस 2. ये हो गया आपका आंसर. आई एम श्योर इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. बार बार मैं बोल रहा हूं, जब भी आपको ऐसे केसेस आए तो वहां पे आपको टाइम सेव करना है. उसमें डायरेक्ट द मोस्ट इजीएस्ट सॉल्यूशंस आई गिवन यू. इसी टाइप से आपको ये सॉल्यूशन डायरेक्टली अप्लाई करना है ताकि आपका टाइम सेव हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर किसी कोई नोट कर रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मैं. dx बाई, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आ गया, कुछ भी आप भी बना सकते हो क्वेश्चन. लीनियर, कोई भी लीनियर ले लो x माइनस 1 छोटा ही लेते हैं, और एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये कौन सा फॉर्म हो गया? dx बाई एल इंटू रूट क्यू. dx बाई एल इंटू रूट क्यू. तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था इसके लिए, जो भी l है, जो आपका l है, l 1/, नहीं है, याद रखिए ये l है आपका, तो l की वैल्यू 1/2 पुट कर t/2 करते हैं. x माइनस 1 इक्वल टू 1/t. तो dx कितना हो जाएगा आपका? माइनस 1/t स्क्वायर dt. ये यहां पे सीधे एज इट इज पुट करते हैं, तो माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई 1x माइनस 1 की जगह 1/t हो गया, और रूट ऑफ, इसको भी t की टर्म में लिखना है. ध्यान दीजिए, यहां x माइनस 1 इक्वल टू 1/t है, तो ये क्या बोलेगा कि x इक्वल टू 1 प्लस 1/t, या फिर यूं कहिए t प्लस 1/t. तो ये हो जाएगा आपका t प्लस 1/t द होल स्क्वायर प्लस t प्लस 1/t प्लस 1. थोड़ा एलसीएम एंड ऑल, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा. यहां से 1/t स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूं. ध्यान दीजिए, रूट के अंदर जो है 1/t स्क्वायर बाहर ले रहा हूं, तो आपके पास ये माइनस तो बाहर आ गया, 1/t स्क्वायर dt है, और डिनोमिनेटर में ये रूट के अंदर से 1/t स्क्वायर जब आप बाहर लेंगे तो बाहर क्या आएगा? 1/t स्क्वायर हो जाएगा. ये प्रोसीजर याद रखिए, थोड़ा दिमाग में रखिए कि 1/t, क्योंकि 1/t स्क्वायर तो कैंसिल होना ही होना है किसी भी, इसीलिए तो ये सारा ड्रामा किया है. तो ये अब बचा क्या है अंदर? रूट ऑफ t प्लस 1 होल स्क्वायर. t प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. और यहां पे क्या बचा? देखिए 1/t स्क्वायर बाहर गया, तो t यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस t स्क्वायर प्लस t, और यहां पे t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर. 1/t स्क्वायर 1/t स्क्वायर बाय बाय, माइनस साइन dt डिवाइडेड बाई रूट ओवर कितना आ जाएगा? t स्क्वायर t स्क्वायर t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 2t, नहीं 2t नहीं 3t प्लस 1. मेरे ख्याल से सही किया है. 1 2 3 1 2, करेक्ट. ये क्या है? ये तो I2 है. दिस इज नथिंग बट द I2. इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके आराम से कर सकते हैं. परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए. तो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/3 प्लस 1/3. लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो प्लस 1/4 कर लेते हैं, माइनस 1/4 कर लेते हैं. आई एम श्योर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी. तो ये माइनस साइन बाहर रहेगा, dt डिवाइडेड बाई, और आपके यहां पे क्या आ जाएगा? t प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, और 4 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? सॉरी 12 एलसीएम, तो -3 प्लस 4 प्लस 1/12. 1/12 मीन्स 1/√12 द होल स्क्वायर. ये फॉर्म हो गया dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो माइनस ln मॉड t प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर दिस कंप्लीटली मीन्स यही चीज t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/3. भाई ये कंप्लीट तो यही है ना, तो इसको ऐसे लिख लिया, प्लस c. t की वैल्यू पुट बैक कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस ln मॉड 1/x प्लस 1/2. t की वैल्यू क्या था? नहीं, t की वैल्यू 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1.
प्लस रूट ओवर 1/x-1 होल स्क्वायर प्लस 1/x-1 प्लस 1/3 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। अरे कुछ कुछ पल्ले पड़ा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सोइए मत, रिस्पॉन्स दीजिए। -1/√3 भूल गया क्या मैं? हाँ भूल गया। ये √3 ये √3 यही आएगा। हाँ, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू एवरीबडी। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। dx by x² - 1 into root of x² + 1। अब ये कौन सा फॉर्म है? ये भी तो dx by क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक है, q1 इंटू रूट q2। क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक q1 इंटू रूट q2 के लिए मैंने आपको क्या मेथड बताया है कि यहां पे आपको x = 1/t पुट करना है। ये वाले केस में पूरा लीनियर को 1/t पुट करना, बट यहां पे x जो वेरिएबल है उसको 1/t पुट कीजिए। लेकिन आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। प्रीवियस दो केसेस में, ये सारे दो केसेस में ये सब्स्टिट्यूशन करने पे तुरंत आंसर आएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहां से नहीं होगा। लेकिन आपको इजीली समझ में आएगा कि अगला स्टेप क्या करना है, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में x = 1/t मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। x = 1/t, तो dx = -1/t² dt पुट कीजिए। तो -1/t² dt डिवाइडेड बाई 1/t² - 1 इंटू रूट ओवर 1/t² + 1। फिर यहां से 1/t² बाहर आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा -1/t² dt डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा आपका 1 - t² इंटू ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 + t²/t। क्यों? क्योंकि ये रूट है ना। तो एक t² तो कैंसिल हो गया, ये माइनस को यहां भेज देते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो t dt, क्योंकि ऊपर तो जाएगा t³ t² इंटू t³ तो 1t² कैंसिल हो जाएगा, और माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास आ गया t² - 1 इंटू रूट ऑफ t² + 1। अब थोड़ी देर के लिए आप सॉल्व करना बंद कीजिए, ध्यान दीजिए। एक्चुअली अगर मुझसे कोई पूछे ये कौन सा फॉर्म है, तो मैं इसको कहूंगा ये dx by L1 इंटू रूट L2 का फॉर्म है। क्यों सर, कहां से? सुबह सुबह दारू पिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये L1 इंटू रूट L2 का फॉर्म है। ध्यान दीजिए जरा, t² का डिफरेंशिएशन यहां अवेलेबल है कि नहीं है? जब t² का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो मतलब ये इसे y की तरह है। भाई अगर t² को मैं y एज्यूम करूं तो ये dy by y - 1 इंटू y + 1 का फॉर्मेट है कि नहीं? जब भी किसी का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है तो वो लीनियर की तरह बिहेव करता है। ध्यान दीजिए जरा। नहीं, ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि बोलो भाई dx by 3 + sin x, क्या ये dx by लीनियर है? नहीं, dx by ट्रिग्नोमेट्रिक है, लीनियर कहां है? लेकिन अगर कोई कहे cos x dx by 3 + sin x, क्या ये लीनियर है? हां, अरे ये तो लीनियर है। क्यों? क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है। तो आप दिमाग में कैलकुलेट, लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में सोचिए, अगर मैं sin x को t लिखूं तो ये dt by 3 + t है, dt by 3 + t है, तो ये लीनियर की तरह हमें दिखाई देगा। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन भी वैसे ही तो है। ये तो dx by लीनियर इंटू रूट लीनियर है, तो जब L1 इंटू रूट L2 होता तो क्या करते हैं, इसको t² पुट कर देते हैं। अब t तो नहीं करेंगे, कुछ और पुट कर देंगे, हम करेंगे t² + 1 = y²। तो यहां से आ जाएगा t dt = y dy, और फिर जब यहां हम पुट करेंगे t dt की जगह y dy पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिए, t² हो जाएगा y² - 1, और t² - 1 है तो y² - 3 हो जाएगा, सॉरी -2, आई एम सॉरी,
-2 हो जाएगा और ये y हो जाएगा, y y बाय बाय हो जाएगा और ये आपका dy बाई वाई स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन तो हो गया और ये आंसर हो गया 1/2√2 ln मॉड y माइनस √2, y की भी वैल्यू पुट कर लीजिए, t स्क्वायर प्लस 1 रूट माइनस √2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2 प्लस c। t की वैल्यू फिर से वापस आपको पुट करना पड़ेगा। फाइनल आंसर। अरे कुछ समझ में आ रही बात? यही चीज मैंने बोला था, जब आप एक थर्ड केस में जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास जो है डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, लेकिन देखते ही समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। यहां पे जनरली जब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टी स्क्वायर को वाई पुट करते हैं, टी स्क्वायर को वाई पुट करते हैं क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो इसलिए टी स्क्वायर को वाई पुट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप टी स्क्वायर को वाई पुट करेंगे तो आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बन जाएगा dy बाई वाई माइनस 1 इंटू रूट ऑफ वाई प्लस 1, फिर y प्लस 1 को आपको यू स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए क्या है। ये क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है न्यूमरेटर में, तो ये लीनियर इंटू रूट लीनियर है। तो इसको जो है सीधे वाई स्क्वायर पुट कीजिए, आपको 2 बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बाकी लोग सोइए मत, रिस्पांस दीजिए बाकी लोग। चलिए, तो ये केसेस हैं। जब भी आपको इसमें से कोई भी केसेस आते हैं तो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और यू विल सेव योर टाइम। या ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऐसा केस आए, कुछ ट्रिग्नोमेट्री दिया रहेगा, आप एक बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अपने आप इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा या इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कितना हो गया? 14, 15, 16 हो गया। चलिए 17 देखते हैं। I-17। कभी कभी ऐसा कुछ आता है, nth रूट मैंने लिखा, nth रूट ऑफ सम लीनियर पावर n-1 इंटू सम लीनियर पावर n+1। ये एक बहुत कॉमन टाइप का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जहां पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं और इस पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? फॉर्म समझ में आ रहा है आपको? dx बाई nth रूट ऑफ, उस रूट के अंदर 2 लीनियर मल्टीप्लिकेशन में है। एक लीनियर के पावर इस n से 1 यूनिट कम है और दूसरे लीनियर के पावर इस n से 1 यूनिट ज्यादा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहला काम तो ये कीजिए कि टेक, पहले तो ये फॉर्म मैच होना चाहिए। अगर ये फॉर्म मैच हो गया, टेक L1 पावर n L2 पावर n आउट फ्रॉम nth रूट। जब आप इसे बाहर कर लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, जब L1 पावर n बाहर आएगा तो अब बाहर केवल L1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये nth रूट है। nth रूट का मतलब समझ आता है ना, पावर 1/n। ये ऐसे है, तो L1 पावर n बाहर आएगा तो L1 बाहर आएगा और L2 बाहर आएगा, और ये जो nth रूट के अंदर है वहां पे L2 ऊपर बचेगा और यहां L1 पावर -1 मतलब L1 ऐसे बच जाएगा। ठीक, और इस स्टेप के बाद से डायरेक्टली आपको पुट करना है L2 बाई L1 इज इक्वल टू T पावर n। जो भी ये nth रूट है T पावर n, आंसर डायरेक्टली आएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। L2 बाई L1 इज इक्वल टू T पावर n। केस समझिए, dx बाई nth रूट, बहुत कॉमन टाइप का इंटीग्रेशन है, बीच बीच में आता है। dx बाई nth रूट ऑफ
nth रूट के अंदर दो लीनियर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन कंडीशन है कि एक लीनियर का पावर 1 यूनिट ज्यादा होना चाहिए n से और दूसरे लीनियर का पावर 1 यूनिट लेस होना चाहिए। उसके बाद से L1 पावर n और L2 पावर n को आप बाहर निकाल लीजिए। जब आप बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा L1 L2 और जो अंदर जो बचेगा 100% L2 बाई L1 बचेगा। क्यों? क्योंकि एक 1 से कम है, एक 1 यूनिट कम है, एक 1 यूनिट ज्यादा है। जो 1 यूनिट ज्यादा है वो न्यूमरेटर में बचेगा और जो 1 यूनिट कम है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जो भी nth रूट के अंदर बचा उसको आप t पावर n पुट कर दीजिए, सीधे क्वेश्चन श्योरली हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि सही में होता है कि नहीं। ऑल ऑफ यू रोटेड? ठीक, कुछ भी बना लेते हैं। क्वेश्चन बनाने में क्या है, जब फॉर्म पता है तो क्वेश्चन तो खुद भी बना सकते हैं। dx बाई ले लो, क्या लो, 4th रूट ऑफ x माइनस 1 पावर 3 x प्लस 1 पावर 5, ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्या ये फॉर्म मैच कर रहा है? dx बाई 4th रूट के अंदर दो लीनियर हैं, ध्यान दीजिए जरा, बाद में नोट कीजिएगा। 4th रूट के अंदर दो लीनियर हैं, एक लीनियर का पावर 4 से 1 यूनिट कम है मतलब 3 है, दूसरे लीनियर का पावर 4 से 1 यूनिट ज्यादा है मतलब 5 है। मतलब ये फॉर्म मैच कर रहा है। जब ये फॉर्म मैच कर रहा है तो फिर सोचने एकदम खुश हो जाने का कि आंसर 100% आ जाएगा। कैसे करना है? पहला काम तो हमें यह करना है कि इसके पावर 4 और इसके पावर 4 बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा? x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक, सी ऐसा कोई जरूरी नहीं है x प्लस 1 हो, x प्लस 2 भी हो सकता है, 2x प्लस 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर और आपको दुखी करना चाह रहे हैं जेई वाले तो लिख सकते हैं sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2 और यहां पे cos x आ गया तो साफ सी बात है sin x इक्वल टू t पुट करेंगे तो वो लीनियर बन जाएगा अपने आप। तो ये आ जाएगा और यहां पे क्या आ गया? 4th रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। हमने तो ये सीखा है जब ये फॉर्म आ जाए तो ये जो भी अंदर रहता है उसको t पुट कर दो, t पावर 4 x माइनस 1 इक्वल टू t पावर 4। डिफरेंशिएट कीजिए, इमीडिएटली आंसर आएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो यहां पे u बाई v का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इज द 1 इंटू x माइनस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 इंटू न्यूमरेटर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 4t क्यूब dt यहां से dt बाई dx लिख लो। तो dx हमारे पास आ गया 4t क्यूब और ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू dt और यहां से x चला गया डिवाइडेड बाई -2। आई एम श्योर एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये वैल्यू हो गई आपकी -2t क्यूब x माइनस 1। कुछ भी इधर उधर मत कीजिए, जैसे है वैसे पुट कीजिए। अब मैं यहां पे वैसे ही पुट कर दे रहा हूं। -2 तो बाहर आ गया, t क्यूब x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू dt डिवाइडेड बाई x माइनस 1 तो रहने दो, x प्लस 1 भी रहने दो और ये हो गया आपका t, क्योंकि इसकी वैल्यू t पावर 4 होल पावर 1/4 तो t हो जाएगा। अब देखिए -2 रहने दीजिए, x माइनस 1 एक कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में क्या बचेगा? x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1। तो अगर उसको नीचे ले आए तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 बाई x माइनस 1। अरे भाई ये लिखो, तुम लोग कुछ लोग सोचते ही रहते हैं x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इंटू टी। ये क्या है? अरे ये तो t पावर 4 है, ये t पावर 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 और t पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर। dt बाई t पावर 4 तो t क्यूब कैंसिल और dt बाई टी स्क्वायर, dt बाई टी स्क्वायर इंटीग्रेशन -1 बाई टी, माइनस माइनस बाय बाय और ये हो जाएगा आपका 2 बाई टी प्लस सी, या फिर यूं कहिए 2 इंटू, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 बाई x माइनस 1 पावर 1/4 दैट मीन्स x माइनस 1 बाई x प्लस 1 पावर 1/4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। ध्यान से देख लीजिए कहीं कोई स्टेप जो कि आपको समझ में ना आया हो। आई कैन एक्सप्लेन, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर मी।
Is this clear to everybody? आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। dx पावर फिफ्थ रूट ऑफ 2x माइनस 1 पावर 4, 3x प्लस 1 पावर 6, कुछ ऐसे से जो फॉर्म मैच करे तो अपने आप आंसर आएगा। बट यहां पे छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे dx है वैसे ही चुपचाप पुट कीजिए, अपने आप सब कुछ कैंसिल होगा और आपके पास डायरेक्ट फॉर्म आएगा जो कि जिसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं। Over. Can I change the page? तो I-17 ये था। I-18 कोई फॉर्म नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। इसमें हम सीखेंगे रिडक्शन फार्मूला। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एज वेल एज ये जो है डेफिनिट में भी कंटिन्यू होगा। रिडक्शन फार्मूला, पहले चीज से ये समझते हैं कि रिडक्शन फार्मूला होता क्या है। कभी कभी क्या होता है कि आपको fx का इंटीग्रेशन पता है, fx dx वी नो, मतलब इसका आंसर हमें पता है। जैसे आपने ग्राफ जब सीखा था ना, याद है ना, ग्राफ जब ग्राफ में fx का ग्राफ पता होता था, हम मॉड fx का ग्राफ बनाते थे, f ऑफ x प्लस a का ग्राफ, कुछ ऐसा ही है। अगर किसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन के पावर में अगर कोई नेचुरल नंबर आ जाता है, n क्या है, नेचुरल नंबर, तो टू गेट दिस वी यूज रिडक्शन फार्मूला। कब रिडक्शन फार्मूला यूज करते हैं? जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है और उस फंक्शन का पावर बड़ा कर दें, पावर 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 10 कर दें, ठीक है, तो रिडक्शन फार्मूला हम यूज करते हैं। रिडक्शन फार्मूला जब भी यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये इसको हम in एज्यूम कर लेते हैं, in, ठीक है, और in को in-1 के टर्म में लाते हैं या in-2 के टर्म में लाते हैं, in-3, वो डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन, मतलब पावर को रिड्यूस कर देते हैं। अगर किसी, सपोज कर लीजिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ sin x पावर 6 पता करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसको क्या कर लेंगे, हम i6 एज्यूम कर लेंगे और i6 निकलेगा i4 के टर्म में, फिर i4 i2 के टर्म में निकलेगा, फिर i2 i0 के टर्म में निकलेगा, और i0 तो हमें पता है, i0 मतलब क्या हो गया, sin x पावर 0 dx, दैट इज द x, ये पता है। तो ये इसको इसके फॉर्म में लाते हैं, इसको इसके फॉर्म में लाते हैं, फिर इसको इसके फॉर्म में लाते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है। अरे कुछ बात समझ में आ रही है? कब यूज करते हैं रिडक्शन फार्मूला? रिडक्शन फार्मूला ऐसा नहीं कि रिडक्शन फार्मूला कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं। रिडक्शन फार्मूला केवल नाम है, यहां कोई फार्मूला नहीं। रिडक्शन फार्मूला, जब भी आपको रिडक्शन फार्मूला यूज करना है तो पहले फार्मूला को डिराइव करना पड़ेगा, फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं और क्या होता है इसके अंदर। जब भी आपको रिडक्शन फार्मूला यूज करना है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो ध्यान से देखिएगा। dx, इसका रिडक्शन फार्मूला यूज करने के लिए पहली बात हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि fx पावर 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है, fx का इंटीग्रेशन पता है, तो पावर n का इंटीग्रेशन हमें पता करना है। रिडक्शन फार्मूला कभी भी इंटीग्रेट नहीं करता है, एक चीज याद रखिएगा, रिडक्शन फार्मूला कभी भी इंटीग्रेट नहीं करता है, रिडक्शन फार्मूला सिर्फ पावर को रिड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रिडक्शन फार्मूला। इसको आप हमेशा in एज्यूम कीजिए और फिर यहां से देखिए दो टाइप के कंडीशन होंगे। वन कंडीशन, इफ fx इज नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक,
दूसरा, इफ fx इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो पॉसिबिलिटी भाई, या तो fx नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या फिर fx ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अगर ये नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर आप in को ऐसे लिखिए, 1 इंटू fx पावर n माइनस 1 dx, n dx, और फिर अप्लाई बाय पार्ट्स। जैसे ही मैंने 1 इंटू लिखा तो आपको आइडिया मिली कि भाई अब बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कर लीजिए बाई पार्ट, इसे u लेंगे, इसे v लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। बट अगर fx ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर आप ऐसे लिखेंगे इसको, fx, इसको दो, fx पावर n को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पावर m एंड fx पावर n माइनस m, इन सच अ वे कि एक का इंटीग्रेशन इजी हो और दूसरे का डिफरेंशिएशन इजी हो। डिफरेंशिएशन तो सबका इजी होता है, इंटीग्रेशन इजी होना चाहिए। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, एक क्वेश्चन किया था हमने सीकेंट क्यूब एक्स, तो सीकेंट क्यूब एक्स को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया था, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट एक्स। क्यों? क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, तो उसको जिसका इंटीग्रेशन इजी है उसे u ले लेते हैं और अदर वाली को v। तो वैसे ही आपको दो पार्ट में ये आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है, बहुत सिंपल होता है, इजीली आप पता करेंगे। और उसके बाद से अप्लाई बाय पार्ट्स, मतलब किसी भी हालत में रिडक्शन फार्मूला बाय पार्ट्स अप्लाई करके डिराइव होता है। प्रोसीजर सबको समझ में आ गया? अगर कोई नोट कर रहा है जल्दी कीजिए, वी हैव टू गो फर्दर। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन करें, बढ़ना क्या है। सपोज कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड कंसंट्रेट, कि भाई डिराइव रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ ln x रेज पावर n dx। n नेचुरल नंबर होना चाहिए, हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, कर लेते हैं। पहला काम तो हम इसे in लिखेंगे। in इक्वल टू क्या हो गया आपका ln x। स्टेप देखिए, यहां से यहां कुछ नोट करने के बजाय पहले स्टेप समझिए। जब भी किसी का रिडक्शन फार्मूला डिराइव करना होता है तो पहले आप उसे in एज्यूम कर लीजिए। in एज्यूम कर लिया। अब यहां पर देखिए ये नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो मैं इसको लिखूंगा 1 इंटू ln x रेज पावर n dx। फिर यहां से आपका u हो जाएगा आपका ln x पावर n और v हो जाएगा 1, तो du बाई dx हमारे पास आ जाएगा n इंटू ln x पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई x, और v dx हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा x। चलिए, तो in क्या हो जाएगा, u इंटू वी डी एक्स, मतलब x इंटू ln x पावर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस करेंगे तो x बाय बाय हो जाएगा, n आउटसाइड आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा ln x पावर n माइनस 1 dx। in इक्वल टू ln x पावर n, तो in दिस विल बी व्हाट, in माइनस 1, तो in इक्वल टू x इंटू ln x पावर n माइनस n इंटू in माइनस 1। ये रिडक्शन फार्मूला डिराइव, ये कोई फार्मूला नहीं है, याद नहीं करना है, रिडक्शन फार्मूला डिराइव कर दिया। मतलब ln x पावर n का रिडक्शन होगा हमेशा 1 यूनिट, एक यूनिट कम हो जाएगा। इसके बेस पे आप किसी का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन यहां पे ऐसे भी आ सकता है कि बाय यूजिंग द रिडक्शन फार्मूला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ln x पावर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ln x पावर 3। इफ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट दिस बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला, तो रिडक्शन फार्मूला तो पहले हमने दिया, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, आप ये मत कहिए i, हम कहेंगे i3 कैलकुलेट करना है। अगर आपको i3 कैलकुलेट करना है तो n को 3 यहां पुट कीजिए, तो i3 आपका पास आ जाएगा x इंटू ln x पावर 3 माइनस 3 इंटू i2, 3 इंटू i2। अब i2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए,
तो x ln x पावर 3 माइनस 3 इंटू I2 कैसे करेंगे, n को 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x ln x होल स्क्वायर माइनस 2I1। डिड यू अंडरस्टैंड? और I1 को भी फिर से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 क्या होगा, n को 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू ln x पावर 1 मीन्स x ln x माइनस 1 इंटू I0 इज व्हाट, I0 इज द x। भाई अगर n को 0 पुट करेंगे तो I0 क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो मतलब माइनस x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है, बस प्रोसीजर आप जो है हमेशा माइंड में रखिए क्या चीज करना है। चाहे क्वेश्चन इजी आए चाहे टफ आए, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा स्टेप जो फॉलो करना वही फॉलो करना है। Once it's done, let me know so that I can change the page. Okay. चलिए और देखते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि आपसे पूछा जाए डिराइव द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर sin x पावर n। थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा। एवरीबडी ट्राई। चलिए, तो इसे हम कहेंगे in इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x पावर n dx। तो in को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक का इंटीग्रेशन इजी होना चाहिए, अदर का डिफरेंशिएशन। तो साफ सी बात है, हमें sin x ही लिखना पड़ेगा, sin x इंटू sin x पावर n माइनस 1। तो u वैल्यू हमारे पास आ गई sin x पावर n माइनस 1 और v वैल्यू आ गई हमारे पास sin x, करेक्ट। तो du बाई dx हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1 इंटू साइन एक्स पावर n माइनस 2 इंटू कॉस एक्स, और v dx हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक, नाउ in इक्वल टू व्हाट, in विल बी इक्वल टू u इंटू v dx, मतलब माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पावर n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हमारे पास बचेगा साइन एक्स पावर n माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। याद रखिए, हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं पावर, मतलब इसको मैं in माइनस 2 नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है। अनटिल अनलेस कॉस स्क्वायर एक्स इज नॉट गोइंग अवे वी कैन नॉट डू। तो कर सकते हैं in इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स पावर n माइनस 1 dx माइनस साइन एक्स पावर n माइनस 2 n dx। भाई 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स पावर n माइनस 2 इंटू साइन एक्स पावर n माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स मीन साइन एक्स पावर n। तो आपके पास आ गया in इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2, क्योंकि ये आई एन माइनस 2 है, माइनस n माइनस 1 इंटू आई एन। रिडक्शन फार्मूला मीन्स बिगर पावर शुड बी लेफ्ट साइड, बिगर पावर शुड बी लेफ्ट साइड। तो बिगर पावर को मैं लेफ्ट साइड लिख देता हूं। लेफ्ट साइड का मतलब ये नहीं कि मैं लेफ्ट पेपर पे लिख रहा हूं, बिगर पावर ये टर्म्स इधर लेके जाता हूं, तो यह आ जाएगा आपका आई एन प्लस n माइनस 1 आई एन, मतलब n आई एन।
एन आई एन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू। तो आई एन की वैल्यू आ गई माइनस वन बाई एन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू। दिस रिडक्शन फार्मूला इज टेलिंग कि ये हमेशा 2 यूनिट रिड्यूस करेगा, पावर को 2 यूनिट रिड्यूस करेगा। ठीक है, मतलब साइन पावर 6x का इंटीग्रेशन करना हो तो साइन पावर 6x का इंटीग्रेशन साइन पावर 4 में कन्वर्ट होगा, और साइन पावर 4 साइन पावर 2 में कन्वर्ट होगा, और साइन पावर 2 साइन पावर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन पावर 0 का इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है x है। अरे भाई ठीक है, कैन आई गो अहेड? चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैं इस मैंने रिडक्शन फार्मूला डिराइव कर लिया, क्या इस रिडक्शन फार्मूला को यूज करके क्या हम साइन पावर 3 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? रिडक्शन फार्मूला तो हमने डिराइव कर लिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, करते हैं इस मेथड से। I3 पता करना है, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो I3 हमारा पास हो जाएगा माइनस 1/3 cos x sin x होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 2/3 इंटू I1 आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड I1 तो पता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x प्लस c हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? तो साइन पावर 5x का भी कोई पूछे तब भी हो जाएगा, क्योंकि I3 हमें पता है, तो n इक्वल टू 5 को तो कहेंगे तो I3 आएगा, I3 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। उसी टाइप से साइन पावर 6x का करना हो तो भी कर सकते हैं, बट रिडक्शन फार्मूला पहले आपको डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है भाई, तो कुछ रिडक्शन फार्मूला, आई होप ऑल ऑफ यू नोट इट। इफ एनीबडी इज स्टिल राइटिंग प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। क्वेश्चन लिखिए, सबके रिडक्शन फार्मूला आपको डिराइव करना है, जितने भी मैं लिख रहा हूं आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब में एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लास्ट वाले में थोड़ा सा मैंने चीटिंग किया है, 2 दे दिया, 2 नेचुरल नंबर दे दिए, दोनों पे पावर और डिवीजन में कर लिए, कोई पावर नहीं है। प्रोसीजर आप वैसे ही माइंड में रखिए, वैसे ही कीजिए, आंसर आएगा। आप ध्यान से रखिए, ये मैं IN कामा माइनस m क्यों लिखा है, क्योंकि m जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो आपको IN कामा माइनस m आपको फिर IN कामा माइनस m के टर्म में निकालना है, IN माइनस 2 m माइनस 2 जो भी करना है उस फॉर्मेट में आपको निकालना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? राइट, तो ये क्वेश्चंस करके दीजिए। अब आपके जो है, आप मान के चलिए कि इंटीग्रेशन 2 लेक्चर और खत्म हो जाएगा, जस्ट 2 मोर लेक्चर। आफ्टर दैट प्रॉब्लम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम, और वो फिनिश हो जाएगा टॉपिक। राइट, एंड आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग एनसीईआरटी। प्लीज रिमेंबर, अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो ये सब पढ़ने का कोई यूज नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
Question number 4, e power x. Yes, this is the e power x, question number 4. Question number 4, it's e power x. Thank you.